سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پاکستان انڈر-19 کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کھلاڑیوں، ٹیم مینجمنٹ کو ٹورنامنٹ جیتنے پر مبارکباد دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے نوجوان کرکٹرز کی محنت، لگن اور عزم کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ یہ کامیابی پاکستان کے نوجوانوں میں موجود بے پناہ ٹیلنٹ کی عکاس ہے۔ انہوں نے کھلاڑیوں کو تلقین کرتے ہوئے کہا کہ مسلسل بہترین کارکردگی کے لیے کوشاں رہیں، پیشہ ورانہ معیار برقرار رکھیں، میدان کے اندر اور باہر ملک کے سفیر کا کردار ادا کریں۔ پاکستان کے نوجوان قوم کے مستقبل کی بنیاد ہیں۔ فیلڈ مارشل نے نوجوان پاکستانیوں کو بااختیار بنانے کے لیے اپنے غیر متزلزل یقین کا اعادہ کیا۔ انڈر-19 ٹیم کے کھلاڑیوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی حوصلہ افزائی اور حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ یہ اعزاز اور پذیرائی مزید حوصلہ اور تحریک کا باعث ہے۔ 172 رنز بنانے والے سمیر منہاس ہیرو قرار۔ وزیر اعظم کا ایشیا کپ جیتنے والی انڈر-19 کرکٹ ٹیم کے ہر کھلاڑی کے لیے 1 کروڑ، ٹیم اسٹاف کے لیے 25 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ وزیر اعظم پاکستان کا کھلاڑیوں کے اعزاز میں استقبالیہ۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی بھی شرکت۔ شہباز شریف خود چل کر پلیئرز کے پاس گئے، سب سے ہاتھ ملایا۔ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے دل جیت لیے، یہ بھارت کے خلاف بڑی فتح ہے۔ بڑی جیت کا بڑا انعام۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستانی انڈر-19 ٹیم کے اعزاز میں ظہرانہ۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی بھی ظہرانے میں شرکت۔ وزیر اعظم نے انڈر-19 ٹیم کا خود استقبال کیا اور خود چل کر پلیئرز کے پاس گئے اور سب سے ہاتھ ملائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی انڈر-19 ٹیم کو ایشیا کپ جیتنے کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا، سمیر منہاس ہمارے ہیرو ہیں، آپ نے دل جیت لیے، یہ بھارت کے خلاف بڑی فتح ہے۔ بھارت کے ساتھ جنگ میں بھی اللہ نے پاکستان کو فتح سے ہمکنار کیا تھا، امید ہے کہ ورلڈ کپ بھی جیت کر لائیں گے۔ وزیر اعظم نے انڈر-19 ٹیم کے ہر کھلاڑی کے لیے 1 کروڑ اور ٹیم مینجمنٹ ارکان کو 25 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا۔ میچ کے دوران آپ کی جو آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی، آپ نے 24 کروڑ عوام کے دل جیتے ہیں اور پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ اس میں جو ہمارے ساتھی نوجوان سمیر منہاس کہاں ہیں، ان کے لیے بھرپور کلیپنگ۔ 172 رنز انہوں نے کیے، تو اگر کوئی 10-12 سکور اور کر لیتے تو وہ پھر حنیف محمد کا مقابلہ کر لیتے۔ بات کوئی بات نہیں، ہماری جو جنگ ہوئی ہندوستان کے ساتھ، بنیان المرصوص فتح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی تھی۔ اس کے بعد یہ آپ نے اسی مخالف کے خلاف جو آپ نے جو جیتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی پاکستان کو عزت ملی، فتح ملی۔ اور بچے کے لیے 1 کروڑ روپے کا کیش کا اعلان کرتا ہوں۔ اسپورٹس اسٹاف کے لیے بھی پر ممبر 25 لاکھ روپے میں ان کے لیے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا کہ بھارتی ٹیم کے کھلاڑی بار بار ہمارے کھلاڑیوں کو اکساتے رہے، ہمارے کھلاڑیوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ بھارتی کھلاڑیوں کے رویے کی شکایت ICC کو کریں گے۔ کل پھر جس طریقے سے انہوں نے بیہیو کیا، یہ تو ہمارے پلیئرز کا ایک صبر کا لیول تھا کہ انہوں نے کہیں پہ کوئی ایسا ریئیکٹ نہیں کیا، لیکن وہ پرووک بار بار کرتے رہے اور ایسی چیزیں ہوئیں۔ although ICC کو انفارم کر رہے ہیں اس کے بارے میں، لیکن یہ بھی کریڈٹ ہم اپنی ٹیم کو جائیں گے کہ یہ صرف کھیل پہ فوکس رکھا انہوں نے کل، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے بدلے ہمیں جیت دی۔ پاکستان انڈر-19 ٹیم ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت کو 191 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دی۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر آپ کو دیں، دھند کے باعث لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ M3 کو بڑی گاڑیوں کے لیے بند کر دیا۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کے جان و مال کا تحفظ ہے۔ شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں۔ دھند کے باعث لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے۔ M3 کو بڑی گاڑیوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ترجمان موٹر وے پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کے جان و مال کا تحفظ ہے۔ شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی نجف آمد۔ گورنر نجف یوسف مکی کناوی نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور گورنر نجف کی ملاقات ہوئی، دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ صدر آصف علی زرداری نجف میں حضرت علی اور کربلا میں حضرت امام حسین اور حضرت عباس کے مزارات پر حاضری دیں گے۔
आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें इलाकाई अमन और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर इत्तफाक किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सऊदी अरब का आला तरीन कौमी एजाज़ किंग अब्दुल अजीज़ मेडल भी दिया गया। इस्लामाबाद से ये खुसूसी रिपोर्ट। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी अरब में सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दफाई व अस्करी ताउन, स्ट्रेटेजिक इश्तराक और बदलते हुए जोग्राफियाई व सियासी चैलेंजेस पर बात की। सऊदी क़यादत ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पेशा वराना सलाहियतों और स्ट्रेटेजिक विजन को सराहते हुए दोनों ममालिक के दरीना और बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए उनके अज़म की तारीफ की। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के जारी करदा शाही फरमान के तहत पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ममलकत सऊदी अरब के आला तरीन कौमी एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल से भी नवाजा गया। ये एजाज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुमताज अस्करी खिदमात और क़यादत, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक हम आहंगी और अदाराजाती रवाबत को फरोग देने में उनके कलीदी किरदार के इतराफ के तौर पर दिया गया। ये एजाज इलाकाई अमन व इस्तेहकाम, खुसूसन इंसदाद दहशतगर्दी और सलामती के शोबों में मुसलसल ताउन के लिए उनकी खिदमात का भी अक्कास है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस एजाज पर खादमे हरमैन शरीफैन और सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए इसे पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन मजबूत और पायदार ताल्लुकात की अलामत करार दिया। उन्होंने सऊदी ममलकत की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म को भी दोहराया। आगे बढ़ेंगे। कराची के इलाके लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में गारमेंट फैक्ट्री के गोदाम में आतिशज़दगी का वाक़या, आग पर काबू पा लिया गया। इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। बात करने के लिए कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सालिक शाह। सालिक, आपके पास क्या खबर आ रही है जाए वक़्वा से? हाँ जी बिल्कुल, मैं इसको जाए वक़्वा पर मौजूद हूँ। यहाँ पर करीब शाम को 5:15 बजे करीब जो है लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जो वाक़ फैक्ट्री है उसके जो बालाई मंजिल पर लगे जो गोदाम था पुराने कपड़ों को, उसमें आग लगी थी। आग की इत्तला पर जो है फायर ब्रिगेड की यहाँ पर 3 से 4 गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची, लेकिन आग की शिद्दत को देखते हुए मजीद यहाँ पर गाड़ियाँ तलब की गई थी। मजबूरी तौर पर 15 से ज़ायद जो गाड़ियाँ और स्टार्कर्स जो शामिल इस ऑपरेशन में करीबन 3.5 से 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। फायर ब्रिगेड हुक्काम का ये बताना है कि आग बालाई मंजिल पर जो पुराने कपड़ों का गोदाम थी उसमें लगी, जिसने आनन फानन जो गोदाम के दीगर हिस्से थे उनको अपनी लपेट में ले लिया था। आतिशज़दगी के नतीजे में गोदाम जो मुकम्मल तौर पर जल के खाकसर हो चुका है। लाखों करोड़ रुपए मालियत का सामान इसमें जल के तबाह हुआ है। बताया जा रहा है कि पुराने कपड़ों का गोदाम था, इनको यहाँ पर सेग्रीगेट करने के बाद उनकी अलग अलग उनको करने के उनको पैकिंग यहाँ पर की जाती थी, जिसके बाद उनको मुख्तलिफ मार्केट्स में यहाँ पर वो बेचा जाता है, जब यहाँ एक्सपोर्ट किया जाता था। इंतजामिया यहाँ पर ये बता रही है कि यहाँ पर 5:15 बजे जब आग लगी थी तो इब्तिदाई तौर पर EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेस जोन की जो गाड़ी तो यहाँ पर आग बुझाने के नतीजे में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया सालिक। कराची के इलाके आगरा ताज में घर से 15 साल लड़की की फंदा लगी लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक खुदकुशी करने वाली लड़की की शिनाख्त 15 साल हादिया के नाम से हुई है। वुरसा ने कानूनी कार्रवाई कराने से इनकार कर दिया। खुदकुशी की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट का कत्ल, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अमीर मासद और अमीर फतह को गुनहगार करार दे दिया। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ज़राई के मुताबिक जावेद भट्ट के कत्ल की मनसूबाबंदी में अमीर मासद के साथ अमीर फतह शामिल है। अमीर मासद के शूटर्स को टास्क देते वक्त अमीर फतह भी मौजूद था। मुकदमे में एक मुलजिम आरिफ भट्टी ताहाल मंजर आम से गायब है। कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर PTI धड़ों में हाथापाई, झगड़ा सालार काकड़ ग्रुप और दाऊद शाह ग्रुप के दरमियान हुआ। झगड़े के बाद सूरत हाल कशीदा हो गई। अमजद अली खान न्याजी के इस्तकबाल पर PTI कारकुनान आमने सामने आए। मेहमान को अपनी गाड़ी में ले जाने पर तनाज़ा हुआ। ASF और CA की मुदाखलत पर PTI के दोनों ग्रुप्स को एयरपोर्ट से बाहर निकाल दिया गया। PTI कारकुनान के झगड़े के बाद सिक्योरिटी अलर्ट, अमजद अली खान न्याजी एयरपोर्ट से रवाना हो गए। पाकिस्तान की मईशत ने एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। माशी माहिरीन के मुताबिक मजबूत ज़र मुबादला ज़खायर कारोबारी तबके के एतमाद में इजाफा और मजमूई माशी इस्तेहकाम में पेशरफ्त के नुमाया अशारियाँ हैं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए।
पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.6 माह से तजावुज कर। मुआशी माहिरीन के मुताबिक मुल्क की ज़खायर महज वक्ती इंतजामात के तहत नहीं बढ़े, बल्कि ये एक वाज़ेह और पायदार मुआशी बहाली का नतीजा है। अदाद शुमार से जाहिर होता है कि बैरूनी कर्ज ब मुकाबला GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% तक आ गया है। 2023 में जहां मरकजी बैंक के ज़खायर कम होकर सिर्फ 2.9 अरब डॉलर रह गए थे, वहीं अब ये बढ़कर तकरीबन 15.9 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं, जो तकरीबन 5.5 गुना इजाफा है। आदाद शुमार के मुताबिक फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज वाजबात में भी तकरीबन 65% कमी रिकॉर्ड की गई है, जिससे मुस्तकबिल में बैरूनी दबाव नुमाया तौर पर कम हुआ है। 2015 से 2022 के दौरान जहां कर्जों में मुसलसल इजाफा और ज़खायर में कमी देखने में आई, वहीं 2022 के बाद सूरत हाल में वाज़ेह बेहतरी आई है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक मजबूत ज़र मुबादला ज़खायर, कारोबारी तबके के एतमाद में इजाफा और मजमूई मुआशी इस्तेहकाम में पेशरफ्त के नुमाया इशारिये हैं। ज़र मुबादला ज़खायर में हालिया इजाफा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान पायदार बैरूनी मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। आगे बढ़ते हुए खबर दें, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। ख्वारिश के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानियों को इज्जत दी, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो रही हो, KPK में हो रही हो, और ये जो ख़वारिज जिनका हम रोज़ाना टिकर देखते हैं, इनका जो ताने बाने हैं वो जाकर अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। जो अफ़गानिस्तान में वो लोग जो भारतीय स्पॉन्सर्ड है वो मौजूद हैं, और हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कहती है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के तमाम ताने बाने जाकर अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। जो लोग वहाँ दहशतगर्दी कर रहे हैं उनसे लाताल्लुकी का ऐलान अफ़गानिस्तान को भी करना चाहिए और अफ़गानिस्तान को उन लोगों को हवाले करना चाहिए। 27वीं तरमीम एक तरफा हुई है, सब दुनिया जानती है। इससे आइन मुतनाज़ा होता है। आइन को मुतनाज़ा बनाने से हमें हर तरफ से गुरेज करना चाहिए। हम डिस्कस करें 78 साल की अफ़गान पॉलिसी को, कि कभी भी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान दोस्त नहीं रहा है। मुझे शिकायत है वहाँ की गवर्नमेंट से, मुझे शिकायत है इस बात की कि वहाँ पर कुछ मुसल्लह तंजीमें हैं और उनके मराकज़ वहाँ पर हैं, और ज़ोर हम डाल रहे हैं यहाँ पर मुहाजिरीन के ऊपर। मुहाजिर जब आता है किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क पे, तो ये मुहाजिरीन एक मसला बनता है और ये दो तरफ़ा होता है। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये दो तरफ़ा मसला है। अमन व अमान वहाँ आ गया है और वहाँ की हुकूमत भी कहती है कि अमन है, तो फिर मुहाजिर को वहाँ भेजने के लिए दो तरफ़ा मुज़ाकरात करके उसका एक शेड्यूल बनाना चाहिए, न कि धकेल दिया जाए।